Namaskar. Good evening to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation. We are here once again celebrating the 100 years of Pandit Ravi Shankar ji through our episodes named as Reflections. But friends, before we start the session, we pray to God to rest in peace one of the disciples and close associates of the Shankar family and also the disciples of Panditji who left for the heavenly abode yesterday, Alan Kazulowski, who is no more with us, one of the dear, very near and dear to Panditji. May his soul rest in peace. Today we are in our 45th episode, friends. This is all possible due to you all viewers' love and affection towards Panditji. We started our journey on 16th May with our first episode, and we are on the eve of 45th episode with 300,000 followers and 2,500 likes of our page. This is all possible due to all you viewers' love and affection. Please do continue and shower your blessings to us so that we can do much better day by day. And of course, Sukanya Shankar Maima is always there, giving her blessings to her to do much better in a best possible way. Today, the guest who is with us, who will share the memories of Pandit Ji, of her memories with Pandit Ji. She got her initial training in Kathak dance under Sri Nalin Kumar Ganguly and later groomed up by Guru Shambhu Maharaj of the Lucknow Gharana and also trained by the Jaipur Gharana Sangeet Acharya Sundar Prasad Ji. So she is a rather exponent of the two Gharanas, that is Lucknow and Jaipur Gharana. And she was honored with the Sahitya Kala Parishad Samman in 2003 and the Sangeet Natak Academy Award in year 2011. And on behalf of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, I welcome Nritya Nipun, Kathak exponent Shrimati Manjushri Chatterjee to our show. नमस्कार Mashi Pranam. प्रणाम ভালো How are you, থেকো Mashi? ভালো থেকো How are you? হাই আপনি কেমন আছেন? ভালো? ভালো আছি So nice to see you, to share your memories with Mama. It will be a very lovely session to hear about all the things of Mama with you and also about your Gharana and your total career in such a huge career in Kathak. And to speak to you, we are having Gaurav Majumdar, senior disciple of Panditji. I welcome Gaurav Dar to the show. Thank you, Navarun. Namaskar. Thank you, Gaurav. Namaskar. Thank you. Didi, আমার প্রণাম আপনাকে আমার ভালোবাসা রইলো আমার শুভেচ্ছা রইলো You're looking so beautiful, so wonderful, so elegant, Didi. I Thank must you. say, I can't resist. And Thank you. সব সময় আপনার থেকে একটা বড় দিদির একটা মার একটা আশীর্বাদ সব সময় পেয়েছি আপনি সব সময় আমাদের এনকারেজ করেছেন which is so very rare. I'm very happy, Didi. I'm very happy to have you on this show because it's very dear to us. It's very special because for me and for all of us, it's like doing a satsang where we speak about the great Pandit Ravi Shankar ji, our Guru, who has blessed all of us so much. He's contributed so much. So, Didi, let's start with your journey. Your journey from Calcutta, then Uttarpada, and then from Uttarpada to Delhi. How did all this happen? Where were you born? What were your parents like? And most important, Didi, because you have seen such a big span, so many decades, the music world must be so very different when you opened your eyes and you became conscious of the music world and musicians and dancers. Events like music festivals must have all started in front of you. Please take us on a journey, Didi. We are really eager to know. शुरू में मैं अपना पंडित जी के लिए प्रणाम करती हूँ उनके ये जो आपने कार्यक्रम शुरू किए हैं इसके लिए मुझे
मुझे बहुत खुशी है कि सारे लोग उनको किस नज़र से देखते थे और उनका आर्ट को किस नज़र से देखा और उन्होंने किस नज़र से सबको तैयार किया, सारा भारत, सारा पृथ्वी को कैसे संगीतमय कर दिया है। और ये उनके वरदान हैं जो कि आज ये समय में आप लोग उनके बारे में जानना चाह रहे हो। उनके साथ जो आगे आगे सो म्यूजिशियन लोग कैसे आगे बढ़ा है और उन्होंने कैसे, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अब श्रोता और दर्शक बनाना ऐसे महान गुरु के लिए ही संभव हुआ सारा विश्व ब्रह्मांड में, कि दर्शक, श्रोता और शास्त्रीय गायन वादन नृत्य के लिए ये सारा तैयार करना, और ये उनका वरदान है। शुरुआत उन्होंने किया पंडित जी। तो इसलिए मैं सबसे पहले शुकन्ना जी को धन्यवाद देती हूँ, मुझे बुलाया है और इसके लिए। और बाकी तो अनुष्का को मेरा बहुत 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 प्यार। उनका अभी फोन आया था दीदी, उन्होंने नमस्कार बोला है, बेस्ट विशेस भेजा है, और अभी यहाँ मैसेज में भी वो हमारे साथ लंदन से जुड़ी हुई हैं। शी इज वॉचिंग एंड शी सेंड्स हर बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ अस। तुम्हारे साथ ही देखे थे ना, तुम्हारे साथ एक दुकान में देखे थे हम दोनों। जी, तो तुमने प्रणाम किया तो उसने भी प्रणाम किया। जी जी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जी। तो हाँ, मैं अपना शुरुआत में करना चाहती हूँ। मेरे गुरु पहले नलिन गांगुली जी थे, क्योंकि मैं संगीत परिवार से नहीं हूँ जी, तो इसलिए हमारे घर में कोई गायन वादन तो होता नहीं था, लेकिन अच्छा लगता था, वो लोग भी सुनते थे। लेकिन शास्त्रीय गायन वादन सुनने के लिए इतना धैर्य कभी नहीं था। तो लेकिन मेरा रुचि बचपन से नृत्य में रहा, और मेरे माँ सबसे बड़े, आज जो मैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने हूँ, ये मेरे माँ के लिए। मेरे माँ ने बोला कि ये लड़की तो कोई भी रिदम होने से पैर चलता है, हाथ चलता है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो स्कूलों में जब सालाना प्रोग्राम होता था तो मास्टर बुलाते थे कोई प्रोग्राम को बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो नाच खुद ही नाच रही है। तो मेरे माँ को पूछा, ये सीखी है? कह रहे, माँ ने कहा नहीं सीखी है। अरे ये तो अपने आप नाचती है, क्योंकि वो म्यूजिक जब तबला और हारमोनियम कुछ चलता था तो मैं उसमें से कुछ ना कुछ कर देती थी। दूसरे दिन मुझे बोला कि कल जो नाचे थे वही करो। तो मैं तो अपने आप में कुछ कर दिया, मुझे क्या पता क्या क्या किया। तो उस दिन मैं वो चीज नहीं, कल वाला करो, कल जो तुमने नाच दिखाया वो करो। मुझे तो आता नहीं है। मैंने बोला मैं तो कल पता नहीं क्या किया। तो ये सब उन्होंने फिर मेरे माँ को बोला कि ये लड़की में बहुत टैलेंट है, इसको सिखाइए। तो फिर गुरु के कृपा धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो उन्होंने फिर मेरे माँ मास्टर मशाई ढूंढने लगे, नाच के कोई टीचर मिले तो अच्छा है। तो टीचर ऐसा सिखाना चाहिए, वो अपने आप जो नाचते नहीं, थोड़ा मुश्किल वाला डांस सिखाना चाहिए उसको। तो उनको तो पता भी नहीं था कथक क्या होता है, भरतनाट्यम क्या होता है, मणिपुरी क्या, तो कुछ उनको मालूम नहीं। बोला मुश्किल वाला डांस सिखाना है। तो ढूंढते ढूंढते फिर नलिन गांगुली जी उत्तरपाड़ा में हम आ गए, और नलिन गांगुली जी के पास, जो अच्चन महाराज जी और शम्भू महाराज जी के शिष्य थे, उनसे मैंने शुरू किया। तो लखनऊ घराना। लखनऊ घराना जी। तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया। धीरे धीरे सीखते सीखते मैं तो खूब रियाज करती थी। मेरे को रियाज अभी तक याद है, मैं सुबह घुंघरू लेके आ जाती थी मास्टर मशाई के घर में, और बस तत्कार शुरू कर देती थी, और घंटों तत्कार चलता था मेरा। मैं पसीना पसीना हो जाती थी। तो मेरे लिए एक जोड़ी कपड़ा भी मैंने रखा हुआ, तो गीला हो जाता था तो उसको फिर धो के सूखने दे देती थी, दूसरे दिन आके पहनती थी। तो रियाज इतना करती थी, 2 घंटे 3 घंटे रियाज सुबह चलता था, उसमें तत्कार, फिर उसके बाद थोड़ा नाधी धीना कर लिया, थोड़ा ऐसे चाल कुछ कर लिया, फिर उसके बाद फिर मैं घर चले जाती थी 2-3 घंटा नाचने के बाद। फिर शाम को आ जाती थी, शाम को फिर उनसे तालीम लेती थी मैं। तो कभी बोल कुछ सिखा दिया, कभी ठाठ सिखा दिया, तो ये सब उनसे सीखना चल रहा था। फिर इसी दौरान मैंने किसी को
ना मेरे माँ को, उनको पता है कि कोई प्रोग्राम में कैसे कराना जाए, कैसे उधर जाके प्रोग्राम करना जाए। लेकिन मास्टर मशाई के वहाँ एक तो पंडित जी के बहुत दोस्त थे, दुर्गा दा, हम लोग दुर्गा दा बोलते थे, हमारे घर जी। के पास ही रहते थे। जी जी जी। तो दुर्गा उत्तरपाड़ा में। उत्तरपाड़ा में। जी तो दुर्गादास, शायद दुर्गाचरण चटर्जी या दुर्गादास चटर्जी ऐसे कुछ नाम था उनका। तो दुर्गादा बहुत आके उधर बैठते थे और वहाँ पे गोकुल नाग जो विष्णुपुर घराने का सितार वादक थे, वो भी आ जाते थे। और उनका बेटा छोटा, मेरे ही उम्र का ही, 1 साल के बड़े होंगे मेरे से, तो मैं भी उसको मनीलाल ही बुला करती थी और वो मुझे मंजू दीदी बोलते थे। तो उसका भी रियाज चलता था, वो भी अपने घर में रियाज करते थे, मैं भी यहाँ रियाज करती थी। तो इन लोगों से ये है कि ये लोग कैसे बता दिया कि ये नाचती है, अच्छा नाचती है, नाचने लगी है। 3 साल बाद वो मतलब अर्ली 50s, मतलब 51 ऐसे होगा। तो उसके बाद 54 में मेरा प्रोग्राम आने लगे। गणनाट्य संगीत सम्मेलन एक होता था, वहां पे मेरा पहला प्रोग्राम हुआ। और मेरे साथ उस समय वहाँ पे जो मास्टर मशाई के वहाँ जो बजाते थे तबला, उन्होंने बजाया, वो ज्ञान घोष जी के स्टूडेंट थे। तो फिर उसके बाद फिर और बड़े कॉन्फ्रेंस में, तो कॉन्फ्रेंस उस समय मेरे समय में धीरे धीरे होने लगे, क्योंकि पहले घर में ही सब संगीतज्ञ जो है और जो वहाँ पे मनमोहन घोष और लाला बाबू, दामोदर दास खन्ना, ये लोग सब थे। फिर उसके बाद फिर शैलेन बैनर्जी जो तानसेन किया, कालिदास सन्नाल जो सदारंग किया, ऐसे सब प्रोग्राम होने। फिर इंटेली कल्चरल कॉन्फ्रेंस अमूल्य चैटर्जी करते थे। तो ये दोनों तो, कालिदास सन्नाल और शैलेन बैनर्जी, ये तो खुद ही गाते थे और ये धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस अपना शुरू किया। तो शुरू में तो वो महाजाति साधन एक होता था, एक है हॉल, वहाँ पे होता था। और फिर बाकी वो इंदिरा हॉल और भारती हॉल, फिर सिनेमा हॉल। हाँ सिनेमा हॉल, उसके जो वो स्टेज है ना, वहाँ पे ही कॉन्फ्रेंस होता था। जी जी जी। कभी दिन को कभी रात को, उस टाइम सिनेमा नहीं होता था, वहाँ पे प्रोग्राम होता। इंदिरा फिर काफी मतलब ऐसे हॉलों में, स्टार हॉल में, न्यू एम्पायर में, न्यू एम्पायर ऑडिटोरियम में, तो वहाँ पे स्टेज में सब ऐसे ही प्रोग्राम होता था। फिर धीरे धीरे मतलब पंडाल बनना शुरू हुआ, बड़ा बड़ा पंडाल। उसमें मैंने क्या बोला था, एक नहीं, डोवरलेन का पंडाल बना, फिर इंटेली कल्चरल कॉन्फ्रेंस का पंडाल बना, फिर बोंगो संस्कृति सम्मेलन उसका पंडाल बना। तो बोंगो संस्कृति सम्मेलन में मैंने पंडित जी को पहले देखा, पहली बार। Which year दीदी? मेरे ख्याल 52, मैं सीखती थी उस टाइम, उनसे डांस सीखती थी। 52, हाँ 52, वो दुर्गा दा ने ही बताया। हाँ। तो वहां पे मैंने उनको किशन महाराज जी के साथ, और ऐसे दोनों इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, क्या बताए उनका। तो बस जब वो आके बैठे तो जैसे रोशनी फैल गया अपना, हाँ पूरा एकदम जैसे चमक गया, इतना सुंदर। उसके बाद उनका तो जब उन्होंने साज लेके, अपना सितार लेके और वो तबला लेके बैठे और एक पीछे तानपुरा, तो उसके जो वो दृश्य है वो इतना सुंदर है, इतना। और उनके साथ उनका जो उन्होंने साधना किया, उनके जो एक निखर आया, वो तो मतलब वही बता सकते हैं जो मतलब इनके बारे में बहुत जानते हैं। मैं रागों के बारे में उतना उस समय में मुझे पता नहीं था, थोड़ा बहुत पता था, ज्यादा नहीं था। तो इसीलिए, लेकिन आम जनता भी वो ले सकते हैं, ऐसे उनका शास्त्रीय वातावरण था, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय बजाना था, लेकिन उनका बाज इतना सुंदर, इतना मधुर था कि सब लोग एकदम, जब खत्म हुआ तो तालियों का गड़गड़ाहट से सब खड़े होके ताली बजाने लगे। और उस जमाने में कितना लंबा होता था दीदी कॉन्सर्ट? अरे मैं तो ये सोचती हूँ कि उस जमाने में जो आलाप होता था, चाहे गायन में, वादन में जो आलाप होता था, वो भी आलाप का जो एक एक स्टेज है,
वो कितने देर तक चलता था, सच में, सच में। और कितना लोग बैठ के सुनते थे, लोग बैठ के सारे बैठ के सुनते थे। कोई एकदम, कोई उसमें ना कोई ताली ना कोई, जो सामने जो जानकार लोग थे वो वाह वाह कभी हो जाते थे, अरे क्या बात है, क्या बात है, ऐसे बोलते थे, क्या बात है, वाह वाह, ये बोलते थे, लेकिन कभी ताली नहीं देते थे। ये ताली तो अभी शुरू हुआ है, ये अभी शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ है। एंड दीदी, वो डिस्ट्रैक्शन होता है उसमें, हाँ, म्यूजिक में एक 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 कॉमा फुल स्टॉप आ जाता है, आ जाता है, तो वो उस समय नहीं था। फिर वो वही मैंने पहले उनको पंडित जी को वहां देखा, और फिर लेकिन सामने नहीं मिली, मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और मुझे इतने बड़े कलाकार से मैं मिलना, मुझे मेरे इतना हिम्मत नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने कहाँ देखा, 1955 में उन्हें पहली बार मिली जब वो आप लोग को मिलने गई। हाँ हाँ, 1955 में, मैं भूल जाती हूँ आजकल सॉरी। दीदी आपको आपको सब याद है, योर मेमोरी इज बेटर देन आवर्स। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए आप। नहीं, 1955 में मैं वो जया विश्वास उनसे सीखते थे, जी, तो वो कुछ नोट ले रहे थे, मैं वहाँ पे जया दी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग। अच्छा, আমি हाँ বলছি জয়া दी শিখতে। हाँ हाँ हाँ, सीखना शुरू किया था। तो उन्होंने नोट कुछ लिखा रहे थे, तो उस समय मैं गई तो मुझे इतना प्यार से मिले, मैंने प्रणाम किया तो प्यार से बोले, हाँ तुम नाच रहे हो पता है मुझे। तो फिर बोला तुम तो मेरे बेटे के उम्र के पास हो, शुभ शुभ शंकर के। तो बहुत बहुत प्यार किया मुझे। तो हाँ, फिर मैंने कहा कि मैं अभी थोड़ी दिन में 2-3 साल में मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो बहुत खुश हुए, बोला हाँ हाँ ठीक है, अच्छा वहाँ पे सीखोगे, बहुत अच्छा बात है। तो तुम्हारे नलिन गांगुली के जो गुरु हैं उनसे सीखोगे? मैंने कहा हाँ, शंभू महाराज जी से मैं तालीम लूंगी। क्योंकि वहाँ पे नलिन गांगुली के घर में एक दिन महाराज जी आए, मतलब महाराज जी मतलब बड़े महाराज जी, बड़े महाराज जी, महाराज जी, हाँ शंभू महाराज जी आए। तो वो साथ में कौन, केशव कुठारी उनके पास सीखते थे नाच। और कलकत्ते के छाया देवी थे जो पिक्चर में काम करते थे, छाया देवी जी, हाँ वो भी आए थे। और वंदना सेन आई थी, क्योंकि वंदना सेन दीवानाथ सेन जो बैरिस्टर थे उनके बेटी थे, और उनके घर में महाराज जी ठहरे थे, इसलिए वंदना सेन भी आई। तो इनके सामने मैंने नाचा और महाराज जी इतने खुश हुए। महाराज जी बोला बस हो गया, तुमने सिखा दिया, अब मैं इसको सिखाऊंगा। बोल के बोला कि तुमको एक आशीर्वादी परन दे रहे हैं। बोल के मुझे बोला ले आओ, पेंसिल ले आओ, ये मैं आज तुमको आशीर्वाद दे के एक परन जो बता रहा हूँ, ये मेरा आशीर्वादी परन है। तो उन्होंने लिखाया, मैं बोलूं? बोलिए, जरूर दीदी जरूर। क्या बात। तो ये उन्होंने लिखाया और उन्होंने खुद दिखाया, तक धुमक तक धा तड़न धा घेगना न तक धुमक तक धा धा ते धा इधर तुम ना गते धा ते धा न धा धे धा ते धा न धा धे ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया। तो उस समय तो मेरे पानी हो जा रही हूँ। मैंने सोचा कि इतने बड़े गुरु, और मैं इतने दिन तक ये सबसे नाम सुना है इनका, और मेरे गुरुजी का गुरु है, और इन्होंने मुझे बोल रहा है, तो मैं तो मेरा पसीना पसीना हो गया सुन के, और मैं कैसे उसको नाचूं। लेकिन इतना प्यार से बोला, तो फिर बोला मास्टर मशाई ने बोला कि इनके माँ के इजाजत के बगैर तो हम कुछ नहीं कह सकते, बुलाओ कहाँ है माँ। तो फिर उनको रिक्शा भेजा और मेरे माँ को ले आए, और माँ को बोला कि आपको दिल्ली आना है, आपके बेटी को लेके दिल्ली आइए, मैं उसको सिखाऊंगा। तो मैंने तो उस समय तो मेरा
इतना जाने का तो प्रबंध नहीं कर पाए, एकदम से दिल्ली एकदम कैसे जाए, थोड़ा सा तो वो चाहिए, कैसे जुगाड़ चाहिए, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे। तो यही बात है। फिर धीरे धीरे 1959 में मैं दिल्ली पहुंची, कला विहार में एक डांस क्लास करने के लिए मतलब वो किया। तो उस समय कला विहार दूसरे हाथ उनके हाथ में था, तो मुझे एज ए डांस टीचर मुझे रखा, तो वहीं मैं रहना शुरू किया। और उसके बाद वहाँ पे मैंने महाराज जी के घर जाके दोपहर को चले जाती थी माँ के साथ। और महाराज जी कथक केंद्र में, उस टाइम भारतीय कला केंद्र था, कथक केंद्र नहीं था, फिर बाद में कथक केंद्र हुआ। तो वहाँ पे वो सिखाते थे, वहाँ से सिखा के फिर उसके बाद जब वो घर जाते थे तब 2 बजे के बाद हम उनके घर में पहुँचते थे, और वहाँ मेरा तालीम होता था। तो उन्होंने इतना, पहले तो कैसे खड़े होने का पद्धति, फिर ठाठ, धीरे धीरे सब सिखाने लगे। तो उसी दौरान लच्छू महाराज जी भी आ गए वहाँ पे। तो लच्छू महाराज जी वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने देखा, बोला नहीं भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये है, उनके पास मैं सीखना शुरू किया। तो सीखते सीखते, हाँ पंडित जी के साथ, हाँ इसी दौरान मैं पंडित जी के साथ दिल्ली में मुलाकात कैसे हुआ मैं बता रही हूँ। अच्छा, मैं जब वहाँ पे थोड़ा प्रोग्राम करने लगी तो चतुरलाल जी मेरा प्रोग्राम देख के बहुत खुश होते थे। तो शीला भरतराम जी, उनको बताया होगा, तो मुझे उन्होंने न्योता भेजा कि आ जाओ, पंडित जी का सितार है। तो हम उधर गए लाल कोठी में जाके, वो क्योंकि उधर तो होता ही था महफिल, तुमको भी पता है, चाणक्यपुरी में लाल कोठी में। तो वहाँ पे विनू जी और अरुण भरतराम, विनय भरतराम ये लोग थे। तो उनके मैं उधर बैठ गई पीछे, मेरे माँ और मैं। अचानक चतुरलाल जी पंडित जी के कान में कुछ बोला, और पंडित जी एकदम से मंजूश्री नाम लिया। तो मैं डर गई, मैंने सोचा और किसी की मंजूश्री है, तो मेरे तरफ देख रहे हैं। मंजूश्री इधर आ जाओ, सामने बैठो। मुझे सामने बैठाया और फिर बोले कि मैं 13.5 मात्रा, सबको बोला 13.5 मात्रा मैं बजाऊंगा। तो उसके विभाग उन्होंने दिखा दिया 2 बार ताली देके। तो बोला आप मंजूश्री ताली दो। तो मेरे थोड़ा ये है कि मैं बहुत नाचती थी उधर, कभी 11 मात्रा, कभी 12 मात्रा, कभी 10 मात्रा, मतलब ताल नाचने का मुझे बहुत शौक था। तो इसीलिए मैं जो ठाट आमद करने के बाद फिर मैं एक ताल ले लेती थी, और वो आधा घंटा 40 मिनट वो कोई ना कोई ताल करती थी। तो चतुरलाल जी देख के ये उनको बहुत अच्छा लगा, तो बोला इसी से ताल दिलाएंगे। और पंडित जी ने ताल देने बोला है, देखो मुझे क्या हाल हुआ मेरा। लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु कृपा होने से सब कुछ हो जाता है। जी जी जी। तो गुरु कृपा रहा, तो मैंने ताली अच्छा दिया। तो उन्होंने मेरे माथा में हाथ रख के बोला शाबाश शाबाश। तो और चतुरलाल जी भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला और मैं सही दिया। तो चतुरलाल जी ऐसे बहुत हमारे क्लास में आते थे, बजाते थे, मेरे साथ बजाते थे। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर 1952 में, हाँ नहीं, मैं वहाँ पे बजाना मतलब नाचना शुरू किया। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या बोल रहे थे तुम? हाँ हाँ, सुकुमार चंद्र जो उनके शिष्य थे, उन्होंने पंडित जी को हमारे घर ले आए, जहाँ मैं क्लास करती थी ना, करोल बाग में। वहाँ पे हमारा रहने के लिए भी एक कमरा था, और क्लास इधर होता था। और भी सितार वहाँ पे सतीश कुमार रेडियो आर्टिस्टिक थे, वो भी थे। जी जी जी। हाँ सतीश कुमार। तो उसके लिए सतीश दादा बोलती थी मैं, उनके लिए सारा रेडियो का जितने आर्टिस्ट है सब हमारे घर में आते थे।
हाँ, अनिल विश्वास जी भी आते थे, सारे जितने हैं, मुजद्दिद न्याजी, हाँ, क्या रघुनाथ सेठ, सब आते थे हमारे घर में। बोटुकदा, ज्योतिरिंद्र मैत्रो, नाम सुना? सुनील बोस, सुनील बोस, ये सब आते थे हमारे घर में। और उसके साथ साथ महाराज जी तो आते ही थे। अच्छा, महाराज जी फिर हाँ, फिर पंडित जी को ले आए, सुकुमार दा। पंडित जी मेरे क्लास देखा, बहुत खुश हुए और मेरे माँ का हाथ का खाना खाया। और फिर खाना खा के फिर बोल रहा है, उस समय निखिल दा भी मेरे घर में रहते थे, मेरे जो भाई थे, तो निखिल दा भी आते थे। तो फिर मेरे माँ को बोला, निखिल अच्छा खाता है, मेरे से इतना नहीं होता है, लेकिन मैं बहुत स्वाद हुआ है, मैं अच्छा से खा रहा हूँ। फिर उन्होंने उसके बाद दोबारा मेरे को बोला कि बंगाली 2 डिश जो है, बोला वो बहुत अच्छा है। मैंने फोन किया, उनसे बात कभी कभी कर लेती थी, तो बात किया तो बोला कि वो डिश मुझे फिर से खिलाना। तो फिर दोबारा आए, पंडित जी को ले आए, तो ये दोबारा उनके मतलब करोल बाग में आया पंडित जी। तो ये मेरा सौभाग्य हुआ उनसे मिलने का। नहीं फिर नहीं मैं फिर बता रही हूँ। फिर महाराज जी से सब मैं सीखती थी, शंभू महाराज जी से। तो उस समय जयपुर घराने का सुंदर प्रसाद जी, क्योंकि वो बिंदादीन को गुरु मानते थे ना। सुंदर प्रसाद जी जयपुर घराने के हैं, लेकिन वो बिंदादीन जी को गुरु मानते थे, जो लखनऊ घराने का थे। तो इसीलिए महाराज जी का पैर छूते थे, महाराज जी के पैर छूते थे। तो वो आए एक दिन और उन्होंने मेरा नाच वहां पे देखा, और देख के फिर महाराज जी के पैर छू के बोला, महाराज जी ये बच्ची को मेरे पास भी थोड़ा भेजिए, मैं अपना घराने का कुछ सिखाना चाहता हूँ। नहीं, मंजूश्री को तुम नहीं ले सकते ऐसे महाराज जी ने बोला। इतना प्यार था, महाराज जी तो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। तो उस टाइम तो ये किशन मोहन, राम मोहन सब बहुत छोटे छोटे थे। राम मोहन तो मेरे सामने ही हुआ। तो कृष्ण मोहन बहुत छोटे थे, और मुन्नी उनकी बेटी जो है मुन्नी, उसका नाम पूरा मुझे याद नहीं है, मुन्नी बोलती हूँ मैं, वो भी मुझे दीदी बोलते हैं। तो मतलब ये दौरान मेरा चलता था सीखने का, और गंडा बंधन करके मैंने शुरू किया था। दिल्ली में हुआ गंडा बंधन? हाँ, गंडा बंधन हुआ ही हुआ। बोला मैं गुरु शिष्य परंपरा से मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो उन्होंने वही गंडा बंद करके, कभी कभी मुझे केंद्र में भी ले जाते थे कि चलो माया राव का प्रोग्राम थोड़ा सिखा रहा हूँ, देखो। हाँ, रेबा दीदी का वो रेबा सीख रहे हैं, देखो। तो हमको कभी कभी बुला लेते थे, हम उधर जाते थे, महाराज जी के साथ ही जाते थे, वहां बैठते थे, देखते थे। और वो कलकत्ते का पहले, हमारे जाने के पहले बेला और नब भी सीखते थे। बेला और नब, हाँ, वो सीखते थे। और कलकत्ते का, वही मैं कह रही हूँ ना, कलकत्ते का प्रोग्राम उसी टाइम, मैं फिर से कलकत्ता में जा रही हूँ इसलिए माफ करना, इधर से उधर हो रही हूँ। कलकत्ता में उस समय इतना अच्छा प्रोग्राम होता था, इतना सदारंग म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, तानसेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, डोभाल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे बाबा अलाउद्दीन खान साहब के, मैंने बताया ना कि वहाँ पे प्रोग्राम हुआ इंटेली कल्चरल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें बाबा अलाउद्दीन खान साहब बजा रहे हैं, और उनके साथ पंडित जी एक तरफ किशन महाराज जी, और एक तरफ तानपुरा में निखिल बैनर्जी, और एक तरफ शरण रानी जी तानपुरा में। क्या आप सोचो, क्या क्या। कंठे महाराज जी भी तबले में? कंठे महाराज तबले में, कंठे महाराज जी और किशन महाराज जी। हाँ, किशन महाराज जी गुरु जी सितार पे, और बाबा सरोद। हाँ, बाबा सरोद में। क्या बात, क्या बात, क्या समा बता था, आप सोचो। वो समा जो सुना है, जो देखा है, वही जानते हैं जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ऐसे समा हमने देखा है कि ये कभी भी नहीं भूल सकते। वो बिल्कुल लगता है कि अभी भी मेरे आंखों के सामने है, चमक रहा है। तो ये मतलब हमने देखा है। और फिर अभी उसी दौरान सब जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट पहले भी आए हुए हैं, लेकिन मेरे सामने ओंकार नाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, हाँ, बिस्मिल्लाह खान साहब,
विनायक राव पटवर्धन, सब हमारे सामने आए। मतलब पहले शायद आए थे, लेकिन उस समय ये सब प्रोग्राम करते थे हमारे सामने। और हीराबाई बरोदेकर, जितने भी थे सब, मतलब फिर उसके बाद गिरिजा देवी भी और ये लोग सब आने लगे। तो इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम, इतना कॉन्फ्रेंस, इतना भारी प्रोग्राम होता था। और होल नाइट सारे मतलब लोग बैठ के सुनते थे। और बाहर में गाड़ी में भी बैठे हुए हैं, उसमें कुर्सी ले आके बैठते थे। अगर जगह नहीं मिलता था वहां पे गाड़ी लेके बैठ के कुर्सी लेके। और कभी बड़े गुलाम अली खान साहब का लास्ट में होरिओम वो गाते थे, आया न बना, ये तो गाते ही थे। तो ये सब उनका उनका चलता था। एक एक मतलब भारी रात में इन लोगों का ही होता था प्रोग्राम। फिर ओंकार नाथ ठाकुर का मत जा जोगी, मत जा मत जा मत जा। हाँ, तो मतलब कहीं से ऑडियंस कोई कोई रोते भी थे और फिर उन्होंने आनंद भी लेते थे। सामने जो काफी जानकारी लोग, अच्छा जिस दिन अलाउद्दीन खान साहब और ये लोग बजाए, मुझे अभी भी याद है। ये पीछे कौन से साल का है दीदी? 19 मैं उस टाइम प्रोग्राम शुरू कर दिया था, तो 1954 के बाद। हाँ, बाद तो हुआ था। उस प्रोग्राम में तो पीछे उस प्रोग्राम में पीछे आशीष खां हाँ, और राहुल देव बर्मन दोनों हाँ, फोटो खींच रहे, सोचो। और हमारे अली अकबर खान साहब साइड में बैठ के देख रहे हैं। और मैं वहां पे, उसके पहले कौन प्रोग्राम हुआ था, तो थोड़ा सा मैं माँ के ऐसे करके लेट गई। तो अली अकबर खान साहब आके, सो गई है सो गई है, অনেক রাত্রি হয়েছে না, শুয়ে পড়েছে, এবারে বাবার প্রোগ্রাম হবে, উঠে বসো। मेरे को उठाया। तो अली अकबर खान साहब मुझे बहुत प्यार करते थे। जी। तो ये मुझे मतलब पता नहीं, मैं पिछले जन्म में कुछ कर्म, अच्छा कुछ कर्म किया है कि ऐसे महान हस्तियों का, महान सारे जितने भी है सब, जैसे मेरा, मैं उन लोगों का परिवार के एक जन बन गई थी। जी। अली अकबर खान साहब को मैं दादा बोलती थी। जी। अच्छा, रविशंकर जी को मैं पीछे रबूदा बोलती थी, लेकिन सामने कभी नहीं बुलाया क्योंकि निखिलदा रबूदा बोलते थे ना, इसलिए बोलती थी। गिरिजा देवी को दीदी बोलती थी, निखिल घोष को निखिल मामा बोलती थी। तो जैसे हमारे परिवार हो गया, परिवार के सदस्य। हाँ, सदस्य हो गया, परिवार के अच्छे सदस्य। मैं बिरजू महाराज जी हमेशा ही बोलते हूँ, बिरजू महाराज जी को मैं गुरु समान मानती हूँ। मैं उनके गुरु बहन हूँ, लेकिन गुरु समान मानती हूँ। क्या उनका, तो वो बोलते तुम हमारे परिवार के एक अच्छे सदस्य में हो। जी। ऐसे परिवार के शिष्य तो, गंडा वंदन शिष्य तो हो ही, लेकिन अच्छे सदस्यों में हो। सदस्य जी। तुमको बोलने का हक है। कभी कोई अगर नाचते थे तो दीपक नाचा तो बोला मंजू गए थे, मंजूश्री गए थे, अच्छा मैं पूछ लेता हूँ क्या कैसा नाचा, मेरे से पूछते हैं। जी। तो ये सौभाग्य मेरे को मिला। जी। दीदी ये कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ पे। हाँ, हाउ ब्यूटीफुल। अली अकबर दादा का लास्ट, जब मैं उनके घर में, उन्होंने मुझे खाने को बुलाया, फोन करके बोला मंजू तुम क्या खाओगे, पूछा कि मछली खाओगे कि चिकन खाओगे कि क्या खाओगे। तो मेरा सारा रेसिपी पूछ लिया और उन्होंने बोला वही बनेगा। हाँ, बेबी दी ने बोला कि बेबी दी बोला बाबा को बोल दो क्या खाओगे, वो बोल रहे पूछ रहे तुमको, फोन करके मेरे को उत्तरपाड़ा में फोन किया। जी। हाँ। ये कोलकाता का उनके घर का ब्यूटीफुल रानी कोठी। पहले तो हम उधर जाते थे रासबिहारी एवेन्यू में उनके घर। जी। हाँ, फिर उसके बाद ये हमारे महाराज जी की ये यूनिक फोटो है, ये शायद और किसी के पास नहीं है। निखिल का, बड़े महाराज जी और मैं। এটা निखिल का? हाँ, ओह हाउ ब्यूटीफुल। एक बार और दिखाइए इसको। है ना, আমি বুঝতে পারিনি। ओह हाउ ब्यूटीफुल। হারমোনিয়ামটা আমি ছিলাম। हारमोनियम আপনি, হ্যাঁ। नेक्स्ट पिक्चर বাবার সাথে। ও হাউ বিউটিফুল। এটা কোথায় দিদি? মাইহারে। মাইহার के बात है, अभी माइहर में आ जाऊं? हाँ। माइहर में आ जाऊं? हाँ निश्चय।
माहिहार में मेरे को अली अकबर दादा मुझे 3 बार बुलाया कॉन्फ्रेंस में। तो एक बार मेरे साथ अल्लाह रखा खान साहब बजाए, दूसरे बार शंकर दा बजाए, हाँ और तीसरे बार लतीफ भाई बजाए। हाँ तो अलग अलग प्रोग्राम तो बजाए। जिस बार पंडित जी थे उसी बार का उसी समय का फोटो है। अच्छा, गुरुजी भी आए थे उसमें? हाँ हाँ, हाँ पंडित जी थे। तो मैं, मेरे माँ, हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए बाबा से। तो बाबा से जब मिला तो फिर उनके बाद फोटो जब लेने, मैं तो उनके पैर के सामने बैठी, बोला नहीं नहीं तुम कलाकार हो, ऊपर बैठो। साथ में बैठा है, मैं तो बहुत डर गई। मैंने कहा नहीं, पहले तो नीचे बैठ के एक फोटो खींच लिया था, फिर उन्होंने ऊपर उठाया और उन्होंने इतने मतलब पुराने पुराने बातें, कब दिल्ली में आए, कब कहाँ ठहरा, कहाँ वो हुआ, सारा बोलने लगे। और फिर उन्होंने फोटो दिखाया सारा देव देवी का, उनका माँ काली का और उसका जरा सब लगा हुआ है ना तो फोटो। फिर बोला यहाँ बैठ के अली अकबर सीखते थे, यहाँ रविशंकर सीखते थे, यहाँ पे निखिल सीखते थे। निखिल का बाद में बोला, पहले बोला कि अन्नपूर्णा मेरे बेटी वो यहाँ पे सीखती थी। मतलब ऐसे सब नाम लेके लेके सब बोल रहे थे। हाँ, तो फिर तिमिर बरन का जो लड़का क्या नाम था, इंद्रनील भट्टाचार्य। इंद्रनील, बोला इंद्रनील मेरा एक थप्पड़ का वो है, बेसुरा बजा रहे थे, मैंने उसको एक थप्पड़ दिया वो सीधा हो गया। ऐसे मतलब इतने जोक भी करके इतने अच्छे। फिर मेरे माँ को बोला कि आप खाना खा के जाइए, खाना खा के जाइए। तो फिर माँ फिर चुप रहे, तो फिर बोले कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो खाना बनाता है, ऐसे करके बोला। देखो कितना वो बहुत 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 मानते थे ये। हाँ, बहुत ये उनका। फिर पंडित जी आके खड़े हो गए। पंडित जी मुझे बुलाया, ऐसे बुलाया, बोले मंजूश्री इधर आओ। मैंने बोला इधर खाना खा के जाओगे, खाना खा के जाओगे? तो मैंने कहा नहीं, मेरा टांगा खड़ा है, मैं चले जाऊंगी माँ के साथ। तो फिर बाबा ने बोला नहीं नहीं, एक पान तो खाना है। गुरु माँ को बोला कि एक पान उनसे बना के ले आओ। तो हम लोग, मैं चली गई दौड़ के, उन्होंने खुद सुपारी काट के पान बना के गुरु माँ ने पान दिया, और मैंने माँ को उनके बाबा के सामने बोला नहीं मैं लेके आई हूँ। तो फिर पान खिलाया। फिर हम लोग जब जा रहे हैं, पंडित जी ने बोला ना कि बाबा का खाने का टाइम हो गया, या तो तुम लोग खाओगे तो फिर बैठ जाओ। लेकिन हमने जब बोला नहीं चले जाएंगे, तो फिर हम लोग टांगा में उठ रहे, बाबा ऐसे खड़े होके हम लोगों को देख रहे हैं। दरवाजे के सामने आ गए, अपने कमरा से बाहर आके दरवाजे के सामने। ऐसे साधु और ऐसे महात्मा, पता नहीं ऊपर से कैसे भगवान का एक रूप उधर, ऐसे सोच सकते हो। हम लोग तो एकदम नगण्य है, कुछ भी नहीं है। हम लोग गए, हम लोगों के लिए कितना आदर। और फिर बोला कि मुझे नाच दिखाना, तुम्हारे नाम देना है एक। तो वो सौभाग्य नहीं हुआ मेरा। तो कॉन्फ्रेंस में हम फिर वहाँ पे महिहार कॉन्फ्रेंस में मैं नाच रही हूँ, अल्लाह रखा खान साहब मेरे साथ बजा रहे हैं। अचानक देखा पीछे अली अकबर दादा और पंडित जी खड़े हैं। तो मुझे इतना खुशी हुआ, इतनी खुशी हुई कि क्या बताएं। फिर उसके बाद मैंने देखा धीरे धीरे ना कुर्सी लेके बैठ गए। मेरा तो जीवन सार्थक हो गया। सच में, सच में। ये कौन सा सन था दीदी? मुझे याद नहीं है, कितना हो गया। 60s में होगा। हाँ 60s में है। 60s में। बाबा तब ठीक थे, स्वस्थ थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना बाहर आके ऐसे खड़े हो गए। हाँ, और उन्होंने ये भी, उनको याद है कि दिल्ली में आए एक बार, सराय खाना में भी रहे, वो भी उन्होंने बताया। ऐसे लाल कोठी में ये लोग तो, ये तो ठहरे हैं बाकी, लेकिन एक सराय खाना में कब मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया। उनको कोई, वो तो साधु थे ना। हाँ, वो एकदम। उनको ये बोलने में कोई उनको नहीं लगता था कि हम कहाँ जाके। नहीं, उनको ऐसे महान सच में, सच में। ऐसे महान लोगों का मुझे दर्शन मिला। बहुत बहुत बहुत।
मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं तो अपने पूर्व जन्म का कुछ वो सुकृति है, तभी मैं ऐसे महान लोगों से मिल पाई। जी जी जी। तो दीदी आपका जो जो जर्नी दिल्ली का था, तो आपने हाँ एक मिनट, मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेरे सुंदर प्रसाद जी से मैं जब वो मैं थोड़ा कैसे नहीं, उन्होंने बड़े महाराज जी से बात किया, हाँ बोला कि मैं उसे सिखाऊंगा, तो उन्होंने बोला नहीं। फिर उसके बाद मैंने तो चोरी चोरी उनके पास गई, क्योंकि इतने बड़े महान गुरु मुझे बोल रहे हैं महाराज जी से, मैं मुझे पता है महाराज जी मुझे बहुत गुस्सा करेंगे, फिर भी मैं चली गई। तो दिल्ली में रहते थे वो? दिल्ली में, हाँ वो हाँ। तो जब कथक केंद्र दूसरे पुराना जब कथक केंद्र था ना, वहाँ पे ही था, ओल्ड दिल्ली के पास। तो हाँ वहाँ पे वो लोग रहते थे, तो वहाँ पे पास में ही था। तो वहाँ पे मैं मतलब चोरी चोरी उनके पास गई और उन्होंने बोला नहीं मैं भी तुमको गंडा बंधन करके ही सिखाऊंगा, मेरे घर का शिष्य बनाऊंगा, गुरु शिष्य परंपरा के सिखाऊंगा। तो उनका गंडा बंधन उधर मैंने किया। और फिर मैं जब नाचने लगी, मतलब तालीम जब उनसे लेने लगी, तो मेरा क्या सौभाग्य है, देवीलाल हारमोनियम में, दुर्गालाल तबले में, कभी दुर्गालाल तबले में तो देवीलाल हारमोनियम में, ये मेरे साथ बजाते थे। और दुर्गालाल तो मुझे दीदी बोलते थे और देवीलाल मंजू जी बोलते थे। तो ये लोग भी मेरे बहुत ही मतलब, मैं जब कभी केंद्र में जब देवीलाल फिर सिखाने लगे, तो मैं एक मेरा प्रोग्राम का कार्ड देने गई, तो देवीलाल, मैंने इससे दरवाजा खुला, देवीलाल मुझे देख के एकदम दीदी बोल के दौड़ के आए, मुझे हाथ पकड़ के ले जाके बैठाया। फिर उसके बाद बोला कि पानी दो पानी दो, सब स्टूडेंट को बोला, पता है ये मंजू दीदी है बहुत। फिर बोले उन्होंने कि हमारे गुरु जी के भी ये शिष्य है, महाराज जी के शिष्य है। तो प्रोग्राम देखने आ जाते थे। देवीलाल बहुत ही मुझे प्यार करते थे, बहुत ही प्यार करते थे। मैं यही कह रही हूँ कि देवीलाल के जब निधन हुआ, मैं इतना रोई, मैं कोई आर्टिस्ट के लिए इतना नहीं रोई, क्योंकि इतने कम उम्र में ऐसे ऐसे ताजा, इतना सुंदर एक कैसे कलाकार को भगवान कैसे उठा लिया। मैं इतना रोई। फिर वो उस टाइम कपिला वात्सन जी मेरे पास बैठे थे, उन्होंने मेरे को बोला नहीं नहीं तबीयत खराब हो जाएगा, मत रो। वो उनके कॉन्डोलेंस मीटिंग हो रहा था संगीत नाटक अकेडमी में, नहीं कथक केंद्र में या संगीत नाटक अकेडमी, तो ऐसे कलाकार थे। अभी देखिए 2 दिन पहले कपिला जी भी चली गई। कपिला जी भी मुझे बहुत प्यार करते। वो 1959 से कपिला जी मेरे लिए इतना सुंदर सुंदर लिखते थे, हमारे ब्रोशर में लिखा है, इतना सुंदर लिखा है कि कितने डिकेड्स से मैं ये मंजूश्री को देख रही हूँ, कितना डिकेड्स हो गया। तो ये मेरे और इतने महाराज जी का और सुंदर प्रसाद जी का स्टूडेंट है बोल के बहुत सुंदर करके मेरे बारे में लिखा। तो हमेशा ही मुझे बहुत प्यार करते थे। एक बार मेरा नाम भूल गया, कथक केंद्र सेमिनार चल रहा था, मेरा नाम भूल गया और फिर मुझे कुछ और नाम पे बुला रहे थे, तो मैंने फिर उनके पास में जाके बोला कि मैं मंजूश्री हूँ। ओ मंजूश्री हो, इतना उनको टच हुआ कि मैंने गलत नाम बोला है। उन्होंने एक चिट्ठी लिख के कि सॉरी, आईआईसी में एक चिट्ठी लिख के गाड़ी भेज के मेरे पास भेजा और उसके साथ बिस्किट विस्किट दे के भेजा कि मैं चिट्ठी भी तुमको दिखाऊंगी कि सॉरी मैंने तुम्हारे नाम कैसे भूल गया। ये लोग सब इतने महान है। नहीं इन लोग में बहुत क्वालिटीज था दीदी, बहुत क्वालिटीज था, इसीलिए इतना कंट्रीब्यूट किया, इतना काम किया, इतना सेवा किया, कितना सेवा किया। तो दीदी एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो कथक का जो 3 घराना है, आपने तो 2 घराना सीखा, आपने लखनऊ पहले सीखा, फिर आपने जयपुर भी सीखा और बनारस का भी घराना है। इसमें कौन कौन इसके मेन एक्सपोनेंट्स, इसके कौन कौन जो दिग्गज कलाकार हुए हैं, और इस घराने में इसका खासियत क्या है, ये तीनों घरानों का? नहीं मैं तो ये देखो सारे घराने का जो है बोल बंदिश जो है थोड़ा अलग है। हाँ। लेकिन सिखाने का पद्धति भी अलग है, क्योंकि बिज्जू महाराज जी जो अपना एक उन्होंने एक मतलब
सौंदर्य कैसे, नृत्य में कैसे सौंदर्य आए, उसके उन्होंने वो मतलब अपने आप बनाया। तो उनका एक अलग सा वो है। महाराज जी का, बड़े महाराज जी का जो पुराना जो था ट्रेडिशन, जो वो था, वो कुछ हम लोग जो सीखे हैं, क्योंकि उन्होंने यही बोलते थे कि अपना सबके शरीर अलग अलग है, सबका चेहरा अलग है। महाराज जी जो बोलते थे, हमारे बड़े महाराज जी, चेहरा अलग है और सबको अगर एक ढांचे में डाल दो तो एक ही मूर्ति बनेगा, एक ही मूर्ति बनेगा। इसलिए आर्ट अपना जो नाच रहे हैं उनका और गुरु का जो है वो उसको लेके एक अलग नया कुछ होना चाहिए, नया कुछ होना चाहिए, हाँ, इंडिविजुअलिटी होना चाहिए, जिसमें कि पता चले कि ये नाच रहे हैं, लेकिन घराना यही है वो पता चले। तो हम लोगों का बोल बंदिश जो है लखनऊ घराने का कुछ अलग है और जयपुर घराने का कुछ अलग है, और बनारस घराना तो सुखदेव महाराज जी ये लोग शुरू किए हैं। उसके पहले तो बनारस घराना तो कुछ था ही नहीं, और सुखदेव महाराज जी अलग से बनारस घराना है। और ये गोपी कृष्ण जी, सितारा जी, अलकनंदा जी, सभी महाराज जी से तो मतलब गोपी कृष्ण जी नहीं, सितारा जी तो मेरे बिरजू महाराज जी को जैसे गोदी में खिलाया। महाराज जी से सीखते थे, बड़े महाराज जी से सीखते थे, उनके भाई से सीखते, अच्छन महाराज जी से सीखते थे, लच्छू महाराज जी से भी थोड़ा सीखा। तो ये है ना, ये घर में सीखा है। और इन लोग तीन बहन थे, देवर 3 सिस्टर्स, सितारा जी, अलकनंदा, सितारा, तारा, सितारा देवी के घर में वो रहते थे, जो गोपी कृष्ण जी के माँ थे ना, गोपी कृष्ण जी के। तो ये तीनों मतलब सीखते थे, मतलब तीनों ही ये घराने में सीखे हैं। और उसके साथ सुखदेव महाराज जी जो है वो कुछ कवित्व वगैरह उन्होंने शुरू किया, कवित्व का काफी उन्होंने किया, तो उसके लेके और उन्होंने अपना एक घराना बोलते हैं। लेकिन असल घराना तो है वो कथक जो है वो मेन लखनऊ घराना, जयपुर घराना। लखनऊ और जयपुर। लखनऊ में जैसे बड़े महाराज जी आपके हो गए, अच्छन महाराज जी हो गए, महाराज जी, शंभू महाराज जी और लच्छू महाराज जी, तीनों भाई थे। अच्छन महाराज जी सबसे बड़े थे, फिर लच्छू महाराज जी, फिर शंभू महाराज जी। और उधर जयपुर में अगर आप चले जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको जयलाल जी और ये लोग जो जय कुमारी जी, ये लोग थे, राम गोपाल जी और रोशन कुमारी जी, रोशन कुमारी जी, दुर्गालाल जी। तो आपने तो रोशन कुमारी जी को देखा होगा? बहुत देखा, उनके साथ हमारा खूब प्रोग्राम होता था। शांता प्रसाद जी रोशन कुमारी जी के साथ भी बजा रहे हैं, मेरे साथ भी बजा रहे हैं। और उनके पिताजी उन्होंने पखवाज में फकीर मोहम्मद जी। तो अलग सा एक रूप होता था उनका, बहुत ही सुंदर। रोशन कुमारी जी इतने मतलब क्या बोलूं कि उनका अपने आप में बहुत ज्यादा वो था, क्या नाच रहे हैं उसको मतलब कोई वो नहीं था कि अपने पिताजी तो बजा ही रहे हैं और वो खुद नाच रहे हैं। मेरे को गुरुजी बोलते थे, गुरुजी जब सिखाते थे मेरे को बोलते थे, रोशन मेरे पास नायिका भेद और गुलाल हाथी सीखने के लिए पलट खाती थी कि मुझे सिखाइए गुरुजी, सिखाइए गुरुजी, तो मैं तुम्हें दूंगा। तो मेरे अच्छा से तो सीख नहीं पाई, उसके पहले महाराज उनका देहांत हो गया है। लेकिन वही है कि रोशन कुमारी जी बहुत अच्छा नाचते थे। हमारे साथ मतलब कितने प्रोग्राम में हमारे साथ, जो उनका प्रोग्राम और मेरा प्रोग्राम, वो तो हमारे से सीनियर थे लेकिन एक साथ होता था। और रोशन जी तो अलग ही था, उनका तो बहुत रियाज, साधना, उनका डेडिकेशन अपने पिताजी के लिए, उनका जो प्यार था, उनका जो रेस्पेक्ट था, वो बहुत। और स्पेशली वो जो पेयर आपने बताया शांता प्रसाद जी और रोशन कुमारी जी का, वो बहुत वो सब बोलते थे, कलकत्ता में बोलते थे कि रोशन जी का रोशना ही नहीं खुलते अगर शांता प्रसाद जी नहीं हो। सच में। सो दीदी, यहाँ से
हाँ। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। हाँ बोलो। पंडित रविशंकर जी का इस फील्ड में आना 1939 में उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया सितार का। उसके पहले तो डांस करते थे उदय शंकर जी के साथ। हाँ, हाँ। लेकिन 39 से उनके आने के पहले गाने बजाने का जो माहौल था, जो प्रोग्राम्स होते थे या जो कलाकार होते थे, और उनके आने के बाद क्या चेंजेस आपको लगता है हुआ? नहीं, पंडित जी के मैं क्या उन लोगों के साथ मतलब वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ बेलायत खां, इमरत खां, बाकी क्या नाम था, सब नाम मैं भूल गई। अली अकबर खान साहब, अली अकबर खान साहब, हाँ। अली अकबर खान साहब, तो ये लोग तो थे ही। और क्या नाम जरा बताओ, मैंने लिख के रखी थी, मैं आजकल बहुत भूल जाती हूँ, सॉरी। क्योंकि उनके आने के बाद काफी मतलब ये जो कॉन्सर्ट्स होना, फिर उन्होंने ये जो दिल्ली में झंकार शुरू करना, जगह जगह प्रोग्राम्स करना, प्रोग्राम का एक फॉर्मेट, वो बहुत सिस्टमेटिकली मतलब वो करते हाँ, थे, जो वो सिस्टमेटिकली जो होता है वो बाकी लोगों को इतना नहीं था। प्रोग्राम कर लिया और उन्होंने कॉन्फ्रेंस आ गया, अब कोई कॉन्फ्रेंस में अपना प्रोग्राम हुआ है, बजाया, वो हो गया, लेकिन बाकी इतना विस्तार से उनको अच्छा तरह से लोगों को समझाना और उसको मतलब कैसे शास्त्रीय संगीत को कैसे आगे, ये मैं तो यही पहले भी मैंने यही कहा कि दर्शक बनाना और समय का पाबंदी, समय का पाबंदी कैसे, हाँ फिर कैसे समय के पाबंद, और कैसे क्या बजाना है, कहाँ पे कैसे बजाना है, इतने सारे अलग अलग जगह समझ के, हाँ अलग अलग तालों हाँ, का क्या उन्होंने एक क्या ये जो मेरे को ये भी बोला था पंडित जी ने एक बार, पंडित जी ने बोला कि मंजूश्री मुझे कुछ ताल बंदिश मेरे पास है, तुमको मैं दूंगा, हाँ, तुमको मैं दूंगा, ऐसे करके बोला। तो मुझे क्योंकि बहुत खुश हुआ। आप तो पास में जोरबाग में रहते थे, तो हम लोग ने हाँ, काफी बार देखा, आप बहुत यू वर वेरी क्लोज, आप आते थे। और मैं सरस्वती पूजा होता था मेरे घर में, तो मैं जरूर उनको लेके मैं प्रसाद लेके जाया करती थी। जी, हर साल मैं जाया करती थी। और तुम लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, तुम लोग तो थे ही, पार्थो था, और बहुत अच्छा लगता था वो पूजा आपके घर में, बहुत हम लोग को बहुत याद है। हाँ, बहुत याद है। मैं प्रसाद लेके जाया करती थी और तुम लोग वो लेते थे, और फिर पंडित जी ने मुझे बोला कि बैठ जाओ खाने के लिए, इधर ही बैठ जाओ। हाँ, उससे अरुण भरत राम, विनय भरत राम, जो उनके जितने भी बड़े बड़े जो कलकत्ता से स्टूडेंट आ जाते थे, सब लोग रहते थे। तो सबके सामने सब इतने मालूम होता था कि बल घर इतना भरा हुआ है, आर्टिस्ट में उनके सारे शिष्य में भरे हुए हैं। और परिमल को मैंने ही ले गया। जी। हाँ, तो परिमल को जब मैंने ले गया, तो परिमल ऐसा है कि परिमल को उन्होंने बोला कि मैं क्यों सिखाऊंगा, निखिल से सिखाओ, निखिल से सिखाओ। तो मैंने कहा नहीं, वो आपसे ही सीखना चाहता है। तो मैं ले गया, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया। जी, क्योंकि परिमल के दिल में, परिमल के अंदर गुरुजी बसते हैं, वो गुरुजी का पूजा करते हैं। वो परिमल बहुत गुरुजी को, हमने दीदी परिमल के साथ हमने बहुत समय बिताया है, और वो एक बहुत अच्छे शिष्य हैं गुरुजी के, और हमने ऐसे अच्छी बातें परिमल से सुनी हैं गुरुजी के प्रोग्राम्स के बारे में। तब इन लोग पटेल नगर में रहते थे। पटेल नगर। बहुत बार उन्होंने बोला प्रोग्राम रात भर चला, सुबह खत्म हुआ, पैदल घर गए हैं ये, और इनके मम्मी और पापा, और इन लोग 3 भाई थे, आपको पता है, पराग और पंकज। पराग तो मेरे पास सीखते थे। पराग तो आपके शागिर्द थे, डांस सीखते थे आपसे। तो परिमल इज सच अ नाइस बॉय एंड सच अ वंडरफुल डिसाइपल ऑफ गुरुजी, और इतना अच्छा हाथ उनका। तो उन्होंने ठीक ही बोला आपको कि मुझे पंडित जी के पास जाना है, क्योंकि उनके दिल में गुरुजी बसते थे। लेकिन गुरुजी का बड़प्पन देखिए, गुरुजी को पता है कि निखिल काका आपके घर में आते हैं, ही इज क्लोज टू यू, तो आप
वहां क्यों नहीं आप उनको हाँ, बोलते हैं? निखिल से सिखाओ। मैंने कहा नहीं, आपसे सीखना चाहता है। जी, तो जी। फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। आपने बोला तो वो हाँ, मैं मेरा मान रखा, उन्होंने बोला नहीं, जी, तुम जी, बोल रहे हो तो मैं जरूर सिखाऊंगा। जी, 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 जी। तो तो हम लोग को दीदी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का जो जर्नी है, हमको जो सबसे अच्छा लगता है कि आपने वो पुराना दिन देखा है, आपने वो पुराने लोगों को देखा है, आपने, हमको जो लगता है कि कला को छोटे से बड़े होते हुए आपने देखा है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने जब आंख खोला होगा, जब समझना शुरू किया होगा, कॉन्सर्ट्स ऐसे नहीं होता था जैसे बाद में बना, जो ये ऑल नाइट कॉन्सर्ट शुरू हुआ, कॉन्सर्ट का एक जो प्लानिंग है, कॉन्सर्ट्स का एक जो फॉर्मेट है, उसका जो एक टाइम का एक, ये आपके आपके सामने ही हुआ होगा, क्योंकि गुरुजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। बहुत और ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं तो वही बोल रही हूँ कि सारा दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि कैसे शास्त्रीय संगीत कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, कैसे और होता है, उसका कैसे होना राग, चाहिए, हाँ, और रागों का उसका, विस्तार, तालों का विस्तार हाँ, कैसे होना चाहिए, ताल कितने प्रकार के उन्होंने ताल को अपने आप से उसको ढाला है, और रागों को कैसे उन्होंने अपने आप में, मतलब अलग अलग रागों को, मतलब किस किस रागों से किस कैसे मिलाना है, कैसे करना है, कंपोज उनका इतना बढ़िया था कि क्या बताएं। क्या फिल्म में कैसे हमको पता है जब नहीं नहीं वो पौथेर पांचाली, पौथेर पांचाली जी। बताओ, पौथेर पांचाली में पार्श्व संगीत, ऐसे ऐसे तुम सोच सकते हो आजकल का जो नहीं, नहीं सोच सकते दीदी। म्यूजिक डायरेक्टर दीदी अनुराधा, अनुराधा, गोदान, गोदान, क्या क्या नीचा मतलब नगर धरती के लाल, गांधी, गांधी का म्यूजिक, गांधी। गांधी का म्यूजिक तो हर बार मैं जब देखता हूँ उनका वो जो सितार का मोहन कौंस, जब भी वो आपके आंख में आंसू आएगा ही इतना। तो इतने सारे फील्ड में इतने अलग अलग वो तरीके जर्नी, से, उनका जो वो था, क्रेबलिन जो वो था ना, हाँ, ओम शांति, हाँ, इनसाइड इनसाइड शांति द मंत्र, क्रेमलिन, शांति शांति, मंत्र, शांति शांति मंत्र। मंत्र। हाँ, मैं सुनती रहती हूँ, मेरे आंखें बंद हो जाता है और सुनते ही रहती हूँ। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। ऐसे म्यूजिक तो कोई नहीं दे सकता, ये कोई नहीं दे सकता। जस्ट 2 दिन पहले हम्म, उनके एक शागिर्द, बहुत हमारे क्लोज गुरु भाई, ये वरुण ने शुरू में बताया, एलन कोज़लॉस्की नाम था, अच्छा, और उनका अभी कल वो अमेरिका में उनका, और बहुत क्लोज थे गुरुजी के, और हम लोग से बहुत क्लोज थे, हमको बहुत बहुत प्यार करते थे, जब भी यहाँ आते थे हमारे घर अच्छा, आते थे, अच्छा। जब मैं वहां जाता था वो हमको घर पे बुलाते थे, मैं रहता था। तो अभी भी जब वो, उनका धीरे धीरे मतलब प्राण निकल रहा था विलास 3-4 दिन में, उसमें भी वो गुरुजी का जो उन्होंने जो चैंट्स जो किया था, उसको चला के सुनते थे कि ये संगीत का कैसा कनेक्शन है। देखिए उन्होंने, गुरुजी ने जो कंपोज किया है, जो उन्होंने बजाया है, जो उन्होंने बोला है, कितने लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ है, कितने लोगों के साथ वो वाइब्रेट किया है, कितने लोगों के साथ they have felt very close to that voice, that music, that sound, that composition. क्या बात था उनमें, क्या उनमें उनमें भगवान ने ऐसा कुछ दिया था कि वो जो भी कुछ करते थे वो आपके दिल में उतर जाता था। अभी देखिए ये आप आप देखो, अली अकबर खान साहब के साथ उनके जो सारा जो कैसेट है, मतलब जी, पहले का जो उनका है, दोनों का जितने भी है, कितना सुंदर है, दोनों में इतना सुंदर बजा। जुगलबंदी तो ऐसा हुआ ही जुगलबंदी, नहीं, हाँ, जुगलबंदी जुगलबंदी ऐसा। उन्होंने ही शुरू किया, और वो जुगलबंदी जो खान साहब और गुरुजी का है, इतना विस्तृत, इतना फ्रेंडली, इतना इंटेलेक्चुअल, इतना ब्यूटीफुल, सब कोई भी एस्पेक्ट आप देखिए आपको तो मिलेगा ही नहीं। तो वही मुझे लगता है कि उनका देखिए सब कुछ लगता है कितना परफेक्ट है, कोई भी काम उन्होंने किया लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल उसमें सही बात इतना है। परफेक्शन, पता नहीं क्या उसमें उनका इसमें सोच दो के, मत नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही उनका जोड़ी नहीं है। कपड़ा पहनते थे तो ऐसे ही लगते थे, तैयार होकर निकलते थे तो ऐसे लगते थे,
जब सितार लेके बैठते थे तो सितार भी लगता था अरे शायद ये सितार उन्होंने शायद हजारों करोड़ों रुपया खर्चा करके बनवाया है, उसका तार अलग, उसका मनका अलग, उसका लकड़ी अलग, उसका शाइन अलग, एवरीथिंग वाज सो वेरी डिफरेंट, वाज सो वेरी परफेक्ट कि लगता था अगर म्यूजिक में तो परफेक्शन होता नहीं है, डांस में म्यूजिक में हम तो कोशिश करते हैं परफेक्शन का, लेकिन उनका सब कुछ लगता था कि वो जस्ट परफेक्शन के आसपास उनका वो छूते हैं परफेक्शन को, हर भी कोई भी चीज करते हैं। तो मुझे आपको बुला के दीदी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं एक दो बातें मैं बोलना चाह रही हूँ, जी शेयर जी करना जी चाहती हूँ। जी जी जब अली अकबर दादा मुझे अमेरिका में, और मेरा एक अपना एक वो था कि मैं ऐसा नहीं अपने आप को मैं प्रचार करने के लिए मैं लाइमलाइट में आना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े गुणी को देखा, इतने मतलब मेरा जो गुरु है इतने बड़े महान गुरु हैं, उन जी लोगों से सीखने का मिला। तो कभी ना ऐसा मुझे चाहत है कि मुझे ये मिले वो मिले, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने बोला आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी चीज है, आशीर्वाद मुझे भर भर के मिला है, उसी में मैं मतलब मेरा पूंजी है और उसी में मैं संतुष्ट हूँ। तो अली अकबर खान साहब मुझे ले गए वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में। वहाँ पे पंडित जी का फोन आया और पंडित जी बोल रहे हैं आलू भाई, वो आवाज जो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा, आलू भाई 84 में। तो 84 फिर उन्होंने बात कर लिया, फिर उसके बाद बोला मंजूश्री मंजूश्री आए हैं, वो तो एक बार हटलाते ना अली अकबर दादा, मंजूश्री आए हैं उनसे बात करो। तो फिर पंडित जी ने बोला हाँ मंजूश्री, तुम अमेरिका से बात कर रहे हो, दिल्ली में रहते हो तो बात नहीं करते हो। मैंने कहा आपका टाइम का है, जब मैं फोन करती हूँ आप नहीं होते हैं। जी जी तो फिर मतलब इतना प्यार से बोला। फिर बहुत बॉम्बे में एक बार गए, बॉम्बे में उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था किनारा, किन्नर स्कूल। हाँ हाँ स्कूल था। तो मैं वहाँ पे प्रोग्राम करने के लतीफ भाई को लेके गई थी। तो लतीफ भाई मेरे साथ बजाने के लिए गए, बहुत जगह लतीफ भाई पूरा महाराष्ट्र में मेरे साथ बजाए, अल्लाह रखा खान साहब भी बजाए और शारदा शाही जी भी बजाए, बहुत मतलब हम अलग अलग आर्टिस्ट को लेके बजाना चाहते, मतलब ये बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ। तो वहाँ पे मेरे को फोन किया, मंजूश्री आज शाम को आ जाना, लतीफ का प्रोग्राम रखा है, सोलो तबला सोलो रखा है, बुलाया मुझे। तो मैं वहाँ पे गई, प्रोग्राम माँ के साथ गई। तो प्रोग्राम होने के बाद, लतीफ भाई का प्रोग्राम होने के बाद बोला कि ये लतीफ का नाम मैंने ही दिया है, जी पहले उसका नाम अल्लाह वाला था। जी 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 हाँ ये आप बताइए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला था ये कि वो हाँ लेट आते थे हरदम, जब रियाज करने आते थे या हाँ। कुछ लेट आते थे तो गुरुजी ने नाम दिया लेट लतीफ। अच्छा हाँ, बोला अपना नाम चेंज करो लतीफ, वहां से फिर वो लतीफ अहमद खान। लतीफ, हाँ। जी जी तो जी लतीफ, तो लेट लतीफ, और लतीफ भाई इतने वही है कि जेंटल लतीफ, मतलब उन्होंने समझाया कि जी जेंटल। जी तो ये सचमुच लतीफ भाई ऐसे ही थे। लतीफ भाई तो मेरे साथ सबसे ज्यादा रियाज तो लतीफ भाई मेरे और साथ क्या किया। क्या बजाए हैं, लतीफ क्या भाई मेरे साथ सबसे क्या ज्यादा। क्या क्या लतीफ भाई क्या बजाए हैं, क्या क्या तबला, क्या क्या हाथ जैसे, क्या टोन दीदी। क्या टोन था। तो मुझे उनका बाज बहुत अच्छा लगता था। ये मुझे और अच्छा एक बार लगा क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि लतीफ हाँ, लतीफ, गुरुजी ने नाम दिया था। और एक बार मैंने शायद शायद तुमको बताया कि नहीं, अभी बताया नहीं होगा शायद, बारनपुर म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, कलकत्ता बारनपुर जो है, वहाँ पे मेरा मतलब मेरा भी प्रोग्राम था, पंडित जी का भी था। हाँ और वहाँ पे क्या नाम था उनका तबला, महापुरुष मिश्र। हाँ महापुरुष मिश्र बजाने वाले थे उनके साथ और मेरे साथ भी। तो अचानक मैं घुंघरू पहन रही हूँ, अचानक पंडित जी आ गए अंदर, और ऑर्गेनाइजर भी दो तीन था, हाथ जोड़ के मेरे को बोल रहे हैं मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी तुम्हारी जगह मैं बजा रहा हूँ, तुम बाद में नाचना। मैंने बोला कि आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, पहले तो मैंने हाथ हटा दिया, मैंने पैर पकड़ के बोला नहीं आपके बाद तो मैं नहीं नाच सकती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। बोला नहीं नहीं नाचना है, बिल्कुल अच्छा होगा, कि बिल्कुल चिंता मत करो। माथे में हाथ लगाया और सचमुच ऐसे महान गुरु ने मेरे को आशीर्वाद दिया। तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरा प्रोग्राम खराब नहीं हुआ, अच्छा हो गया। जी तो ऐसे
वो है कि बस हाथ जोड़ के इतने महान, सारा दुनिया के छाए हुए जो पंडित जी हैं, भारत रत्न, वो मेरे को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे पहले मुझे बजाने दो। और ये एक एस्पेक्ट दीदी था उनमें, ह्यूमिलिटी ऐसा था, that humility made him, that was the final, बाकी सब क्वालिटी के साथ उनका जो ह्यूमिलिटी था, it made him one of the greatest person and बहुत म्यूजिशियन। बहुत बहुत दीदी बहुत अच्छा लगा आप आए दीदी, नहीं, नहीं, नहीं। हमारे हमको आशीर्वाद देने के लिए आए। नहीं, मैं तो आशीर्वाद किया, तुम इतने अच्छे बजाते हो, तुम्हारे मेरे घर में तुमको बुलाया, तुमने बजाया, इतना सुंदर बजाया। और मुझे मतलब यही है कि तुम लोग शुभ हो, तुम लोग जितने भी लोग हो, मतलब क्या नाम है उनका, शुभेंद्र और पार्थो, और ये लोग सब, तुम लोग सब मिल के रहते हो, परिमल, सब मिल के रहते हो अपना गुरु भाई के साथ, और तुम लोग सारे प्यार बांट रहे हो, और तुम तो इतनी बड़ी महान काम कर रहे हो गुरु के लिए, तो ऐसे ही महान काम कर रहे हो कि क्या बताए। और इसमें तुमने हमें जो बुलाया है, इसलिए तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दीदी, आप आशीर्वाद करिए, आपको भगवान अच्छा रखे। मैं तो इसलिए मैं डर रही थी, मैंने बोला कि मुझे मत बोलो, मैं देखूंगी, तुम लोग जो कर रहे हैं वो ही देखूंगी, तुमने माना नहीं तभी मैं आई हूँ। आप आएंगे तो पूरा दुनिया आपको देखेगा, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपने ऐसा चीज देखा है, आपने ऐसा डांस किया है, आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले, और मुझे खुशी है कि आपने वो हमारे साथ बांटा, हमारे साथ बात किया, और इतने सारे अच्छे अच्छे आपने हमको, इतना आपका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, कितने सालों का, कम से कम 70 सालों का जो आपका जो एक्सपीरियंस, वो आपने हमारे साथ बांटा। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दीदी। अरे नहीं, आपको प्रणाम करता हूं। मैं बोलूंगी धन्यवाद मुझे इस जगह में ले आने के लिए, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। ऐसा नहीं दीदी, आप जहाँ पंडित जी, जहाँ इतने मतलब भारत रत्न पंडित जी, और वहाँ मंजूश्री क्या कुछ एकदम, क्योंकि आपको वो बहुत चाहते थे, और हमको हरदम बोलते थे दीदी, जब भी वो बाहर जाते थे बोलते कि बीच में जब मैं नहीं रहूंगा, दीदी সাথে যোগাযোগ রাখবি, ख्याल रखबी, ওনার কাছে যাবি, মাঝে মাঝে কাছেই থাকে, চলে যাবি। बहुत बहुत, और हमसे पूछते थे दीदी সাথে দেখা হলো, বললাম हाँ दीदी সাথে দেখা হয়েছে, दीदी ভালো আছে। तो ख्याल रखते थे, वो बिजी थे लेकिन ख्याल रखते थे, सबका ख्याल रखते थे वो। तो चाणक्यपुरी में भी मैं गई, चाणक्यपुरी में भी। और हाँ, लास्ट में एक चीज बोलना चाहती हूँ, किशन महाराज जी उनके साथ, उनके सामने जो बजाया, जिस दिन उनका लास्ट सोलो था, जी, वो मेरे घर में आए। हाँ। और उधर जाने सुबह आए, और उन्होंने मेरे पास, मैंने उनके खाने के थोड़ा सा प्रबंध किया था, बोला नहीं देखो, ऐसे महान जगह में बजाने के लिए इतने महान कलाकार, वो जैसे भगवान को पूजा करने के लिए संयम करने पड़ता है, संयम। पंडित लोग संयम करते हैं कि आज दुर्गा पूजा होगा, तो पहले दिन संयम करते हैं, कोई भी पूजा करने के लिए, कोई हवन करने के लिए संयम होता है। तो जैसे किशन महाराज जी पंडित जी के पास बैठ के बजाएंगे, इसलिए उन्होंने कुछ खाया नहीं, ऐसे टुकड़ा लेके मुंह पे दिया, बोला आज पंडित जी के पास बजाना है। मैं गई थी, तो वो ये उनका लास्ट, उनका वहाँ पे दिल्ली का प्रोग्राम था, और क्या बजाया, अलग अलग सब, और वो याद नहीं आ रहा है मेरे जैसे। मेरा भी यही हाल हुआ। कितना आपने एक महान चीज हम लोग को बोला, कि जैसे कोई पूजा में, कोई ऑस्पिशियस डे में हम लोग व्रत रखते हैं, हाँ, उसी तरह उनके लिए वो एक फेस्टिवल था, उनके लिए वो एक पूजा था, तपस्या था, कि हम चाणक्यपुरी में बजा रहे हैं, पंडित जी के सामने बजा रहे हैं, तो आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं बजाऊंगा, आज मेरा पूरा दिमाग, दिल, जो शरीर है, वो मेरे संगीत में, मेरे तबले के साथ रहेगा। कितना हम लोग को सीखने के लिए है, और आप जैसे लोग ही ये हमारे साथ बांट सकते हैं कि हम सीखें। हम जैसे स्टूडेंट्स, वी लर्न फ्रॉम दिस, एंड वी ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू यू दीदी विथ लॉट ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। आपने हमको बहुत आशीर्वाद किया है, और यही आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। आई प्रे टू गॉड टू कीप यू हेल्दी, एंड आप अच्छे रहें, और हमको ऐसे ही आशीर्वाद करते रहें, और हम जल्दी मिलेंगे आपसे दीदी। अच्छे रहो। थैंक यू।
मैं नबरुण को बुलाऊंगा। दीदी, नबरुण को भी आप आशीर्वाद करिए। हाँ, वो जरूर जरूर गुरु जरूर। जी के नेफ्यू, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये फाउंडेशन, पंडित रविशंकर म्यूजिक फाउंडेशन को लेके एजुकेशन के ऊपर, बच्चों को म्यूजिक से जोड़ने से, और काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, और ये जो सीरीज वही कह रहे थे वो, तुम जब नहीं आए थे तो बोल रहे थे जी कि मैं तो अपना वो पूरा वो उसका कुछ है ना, मेडिसिन का कुछ, जी 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 तो वही कह रहे थे। फार्मास्यूटिकल जी। हाँ, फार्मास्यूटिकल उसके, तो वही बोल रहे थे। लेकिन मैं ये काम अभी कर रहा हूँ, मेरे बेटा बजा रहे हैं, वो बोल रहे थे। हमने उनको बोला कि आपको दवाई का जरूरत नहीं है, मैं संगीत से आपका जो जितने सारे प्रॉब्लम है मैं बिना दवाई का ठीक कर दूंगा, आप हमारे साथ आइए, हम लोग काम करते हैं मिलकर। हाँ। म्यूजिक म्यूजिक सब चीज का दवा है, आपको और दवाई क्या? नहीं बनाना पड़ेगा। और क्या, बिल्कुल सही बात है। म्यूजिक। दीदी, हमारा और- प्रणाम आपको। अच्छा। गौरव दा ऐसे ही हंसाते रहते हैं दीदी, हम लोग यही चाहते हैं गौरव दा ऐसे ही हमेशा हंसाते रहे। एंड द शो वाज वेरी गुड। दीदी आपने जो माशी आपने, सॉरी मैं दीदी बोला, माशी आपने जो मेमोरीज बोला मामा जी का, रियली इट वाज वंडरफुल। और आपने जो पूरा इतिहास एक बताया कथक घराने का, वो व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा मतलब अच्छी नई अरे चीज नहीं, उन्होंने तुम सुना लोग हुआ है। अच्छा से लिया और तुम लोग इसको समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे आगे अच्छा अच्छा काम करते इन रहो, सबके हम भी पीछे देखते हैं। एक्चुअली माशी, सबके पीछे सुकन्या माइमा का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, वो उनको अगर तो नहीं मैं, रहती, हाँ, नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बिकॉज शी बिल्कुल। इज ऑलवेज देयर टू गाइड अस, ब्लेस अस। एंड जो चीज गलत होती है तो डांट भी देती कि नहीं इस तरह इसको करो, ऐसे करो, तो शी इज ऑलवेज विद अस, तभी नहीं, हम लोग इस उनको चीज को कर पूछना पा आज रहे हैं। आज आज के कैसा लगा, उनको पूछना। नहीं वो जरूर देख रही, शी इज वाचिंग दैट, आपको शी नहीं इज यहाँ पे बताना वाचिंग लिखा द है, होल। यहाँ पे पूरे लिखा लाइव रहती हैं वो, पूरे क्या लाइव में रहती, आती है उन्होंने नमस्कार आपको बोला है, फिर अभी हाँ। ग्रीटिंग्स दे रही है, तो शी इज ऑलवेज देयर टू शी इज गाइड लव्ड अस। इट, उनको उनको एंड बहुत शी अच्छा लव। लगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि उनको अच्छा लगा। जी 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 जी, जी, बिल्कुल अनुष्का को बिल्कुल। अरे मेरा बहुत प्यार देना, अनुष्का। जरूर बिल्कुल जरूर बिल्कुल जरूर बिल्कुल, दीदी, जरूर जरूर जरूर। जरूर। थैंक यू दीदी, प्रणाम। गुड नाइट। थैंक यू। And to the viewers of Pandit Ravi Shankar Music Foundation, tomorrow once again we will be here with another eminent personality sharing his memories with Pandit Ravi Shankar ji. But tomorrow the program starts at 6 p.m. So be tuned at 6 p.m. Till then, good night and be safe.